Hello students, today we will discuss about distance of closest approach. What is meant by closest approach? Closest means जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में किया था न्यूक्लियस की लोकेशन के लिए कर चुके थे हम, और हीलियम जो एटम है यानी कि कह सकते हैं अल्फा पार्टिकल इसकी तरफ आ रहा था ऐसे, क्योंकि अल्फा पार्टिकल भी पॉजिटिवली चार्ज्ड है एंड न्यूक्लियस भी पॉजिटिवली चार्ज्ड है। तो क्या होगा, अल्फा पार्टिकल इसकी तरफ आएगा और जैसे ही इसके इफेक्ट में आएगा तो क्या हो जाएगा, ये अपने पाथ से डेविएट हो जाएगा। ठीक है, तो मिनिमम पाथ बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द अल्फा पार्टिकल, वो मिनिमम पाथ जब क्या है, जो हमारा अल्फा पार्टिकल डेविएट होना शुरू हो जाएगा, वो होता है क्लोजेस्ट अप्रोच। या फिर ये कह सकते हैं कि अल्फा पार्टिकल बगैर डेविएट हुए कितना क्लोज आ सकता है न्यूक्लियस के। अल्फा पार्टिकल बगैर डेविएट हुए कितना क्लोज आ सकता है न्यूक्लियस के, तो वो क्लोज वाला जो डिस्टेंस है वो क्या होगा, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। तो करते हैं इसके बारे में अभी हम। देखिए, जब अल्फा पार्टिकल, क्योंकि अल्फा पार्टिकल मूव कर रहा है तो उसकी कोई ना कोई काइनेटिक एनर्जी तो होगी, ये चीज क्लियर। अब ये हमारा न्यूक्लियस है, इधर अल्फा पार्टिकल कह दें पॉजिटिवली चार्ज होता है, तो इसकी कोई ना कोई काइनेटिक एनर्जी होगी अगर ये इधर मूव कर रहा है। बिल्कुल ठीक, लेकिन ये भी पॉजिटिव चार्ज, ये भी पॉजिटिव चार्ज, तो क्या होगा, ये जैसे जैसे आ रहा है तो पॉजिटिव चार्ज इसको रिपेल करेगा। ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन दिस काइनेटिक एनर्जी विल बी डिक्रीज्ड। तो ये इधर आता रहेगा, इसकी काइनेटिक एनर्जी जितनी भी है, और ये इसको रिपेल करेगा तो इसकी काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होगी, और इसके पास आते आते ये अपनी काइनेटिक एनर्जी को लूज कर देगा। तो इसकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो चेंज हो जाएगी पोटेंशियल एनर्जी में, और वही पॉइंट हमें फाइंड करना है जहां इसकी काइनेटिक एनर्जी कंप्लीट पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हो जाए। जब ऐसा हो जाएगा तो जो पार्टिकल है हमारा आगे की तरफ मूव नहीं करेगा, क्योंकि उसके पास काइनेटिक एनर्जी नहीं रही, और क्या कर देगा, ये उसको वहां पर डिफ्लेक्ट कर देगा, अपने इफेक्ट से रिपेल कर देगा। तो वो ही डिस्टेंस हमारा क्लोजेस्ट अप्रोच है। यानी कि जब हमारा अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस की तरफ आ रहा है तो उसके पास कोई ना कोई काइनेटिक एनर्जी है, and this kinetic energy is decreased due to electrostatic repulsion between these charges. And as the alpha particle comes near to the nucleus, its kinetic energy is getting decreased continuously due to electrostatic repulsion between these two charges. And at a particular distance the whole kinetic energy is lost and it is converted into potential energy. That distance is known as distance of closest approach. Is it clear? Okay. As the alpha particle moves towards the nucleus, its kinetic energy starts decreasing due to electrostatic repulsion,
and at a particular distance the kinetic energy is converted into potential energy, and that particular distance is known as distance of closest approach. How can we find this distance of closest approach? So we know that kinetic energy is converted into potential energy. Is it clear? Means kinetic energy, initial kinetic energy will be equals to the potential energy. Is it clear? Formula for kinetic energy equals to half mv square, and for potential we have discussed about the potential in first unit. What is potential? 1 by 4 pi epsilon naught, 1 by 4 pi epsilon naught Q1 Q2 by R. If we are denoting this distance by R naught because it is the distance of closest approach, so denote it by R naught. And Q1 Q2 are the charges, where Q1 is the charge of that alpha particle. Alpha particle has 2 electrons, so we can write it 2e. Is it clear? And the second charge is due to the nucleus, means atomic number and electrons. Is it clear? So it will be half mv square equals to 1 by 4 pi epsilon naught 2ze square by R naught. Is it clear? Next, move this R naught here, because we have to find out this distance of closest approach. It will be 1 by 4 pi epsilon naught 2ze square and by half mv square. Or write in short 1 by 4 pi epsilon naught, that is key, 2ze square by kinetic energy. You can write it as. Is it clear? This is the kinetic energy, this is the constant 1 by 4 pi epsilon naught, or this is for, or say this is for the distance of closest approach. Closest approach 1 by 4 pi epsilon naught 2ze square by 1 by 2 mv square. This is for the closest approach. And it is given that in a head-on collision, question is given, in a head-on collision between an alpha particle and gold nucleus, alpha particle and gold nucleus, head-on collision between an alpha particle and gold nucleus. The closest distance of approach is found to be 4 into 10 raised to power minus 14 meter. Nucleus, the R naught is found 4 into 10 raised to power minus 14 meter. 4 into 10 raised to power minus 14 meter. Now we can find out the kinetic energy also. Calculate its kinetic energy. Find initial kinetic energy of alpha particle
here is the formula for kinetic energy. This is the formula for kinetic energy, 1 by 4 pi epsilon naught 2z a square by r naught. And kinetic energy equals to 1 by 4 pi epsilon naught 2z e square by r naught. It is given. And write the values. 1 by 4 pi epsilon naught 9 into 10 raised to power 9. Here 2 into z. Z is the mass number of gold is 79 into E is the charge of electron. Charge of electron is 1.6 into 10 raised to power minus 19 and square of this. And value of R is given 4 into 10 raised to power minus 14. Write all the values and find the answer, and it will be solve it, and the answer will be 9.1 into 10 raised to power minus 13. 9.1 into 10 raised to power minus 13 joules. Is it clear? Distance of closest approach. The minimum distance at which an alpha particle can come to the nucleus. यानी कि वो मिनिमम डिस्टेंस है जितना नजदीक तक जा सकता है अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस के. तो न्यूक्लियस और अल्फा पार्टिकल के बीच का वो कम से कम डिस्टेंस जितना अल्फा पार्टिकल वहां तक जा सकता है, वो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच है. यानी कि कितनी क्लोज हो सकती है अप्रोच अल्फा पार्टिकल के न्यूक्लियस के, ये है इसका मतलब. तो जैसे जैसे अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस के नज़दीक जाएगा उसकी काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होती चली जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होती चली जाएगी, क्योंकि दोनों सेम चार्ज है और इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन होगा. इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन होगा तो काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होगी और वो पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी. तो एक ऐसा केस आएगा कि उसकी सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई. इसका मतलब जो अल्फा पार्टिकल वो और आगे नहीं जा सकता. तो वही दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा वही है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच. तो यहां इसका मतलब जो हमारी स्टार्टिंग में काइनेटिक एनर्जी थी वो जब डिक्रीज होती चली गई, तो जब वो बिल्कुल खत्म हो गई तो क्या हुआ, उतनी ही तो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी. जितनी स्टार्टिंग में हमारी काइनेटिक एनर्जी थी उतनी ही तो पोटेंशियल एनर्जी होगी ड्यू टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. सो काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू हाफ mv स्क्वायर एंड पोटेंशियल वी हैव फाउंड आउट इट इन द फर्स्ट चैप्टर 1 by 4 pi epsilon naught q1 q2 by r naught, where it is the charge of alpha particle. Helium atom has 2 electrons, and this is the Z is the atomic number, E is the number of electrons. Alpha particle, helium atom, is it? And R is the distance of closest approach. So half mv square equals to 1 by 4 epsilon naught 2z square by r naught. R naught will be 1 by 4 pi epsilon naught 2z e square by 1 by 2 mv square. Is it clear? Here it is given that in a head-on collision, the closest distance of approach is given as 4.10 raised to power minus 14, and we have the formula 1 by 4 pi epsilon naught 2z square by r naught. So kinetic energy will be 9.1 into 10 raised to power minus 13 joules. Is it clear? Next topic. Angle of scattering. Angle of scattering.
एंगल ऑफ स्कैटरिंग क्या है, यानी कि जो हमारा इधर तो न्यूक्लियस है और इधर अल्फा पार्टिकल आ रहा है, ये इसका पाथ है, ठीक है। जब यहाँ आता है तो सीधा ही चला जाता है। यहाँ एंगल ऑफ स्कैटरिंग उसका कितना होता है 180 या 0, ठीक है। भाई इधर से आया इधर ही चला गया, एक तरीके से कहेंगे हम 0 पे ही होगा, वापस उसने अपना पाथ रिट्रेस कर दिया। लेकिन अगर ये इधर आ रहा है, ठीक है, और यहाँ पर थोड़ा बहुत इफेक्ट है इसका, तो क्या होगा, थोड़ा सा इसको जाना तो चाहिए था इधर, लेकिन इसके इफेक्ट से, पॉजिटिव चार्ज के इफेक्ट से थोड़ा सा ये डेविएट हो गया। तो इसके डेविएट होने की डायरेक्शन और इसकी जो एक्चुअल डायरेक्शन थी जिसमें ये जा रहा था, उनके बीच का जो एंगल होगा वो है एंगल ऑफ स्कैटरिंग। सो इट इज द एंगल बिटवीन the particle gets deviated from its original direction. It is the angle between the deviation of particles to and its original path. Is it clear? This will be the angle of scattering, we can say. यानी कि एंगल ऑफ स्कैटरिंग क्या है, अभी कितने एंगल पे वो जो हमारा अल्फा पार्टिकल है डेविएट हो गया, कितने एंगल पे स्कैटर हो गया, उसकी ये डायरेक्शन थी आ रहा था। तो लेकिन न्यूक्लियस ने उसको उसके ऊपर इफेक्ट दिखाया, इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन हुआ, तो क्या हुआ, जैसे इसके नजदीक आया ऐसे, तो ये कितने एंगल पे चला गया, वही है एंगल ऑफ स्कैटरिंग। और एंगल ऑफ स्कैटरिंग हम कैसे निकालते हैं, एंगल ऑफ स्कैटरिंग हम निकालते हैं इंपैक्ट पैरामीटर से, इंपैक्ट पैरामीटर। इंपैक्ट पैरामीटर, अब देखिए इंपैक्ट पैरामीटर क्या होता है। ये हमारा न्यूक्लियस, इधर से अल्फा पार्टिकल इधर आएगा, तो ये तो हो गया सेंट्रल लाइन ऑफ द न्यूक्लियस, बिल्कुल न्यूक्लियस के सेंटर में आ रहा है सेंट्रल लाइन। और दूसरा कि न्यूक्लियस के बगैर इफेक्ट के जहां तक कोई भी जो पार्टिकल है बगैर डेविएट हुए जा सकता है। मान लीजिए एक ऐसा डिस्टेंस है कि यहां तक न्यूक्लियस का कोई इफेक्ट ही नहीं है, ठीक है, तो वो क्या होगा, ये जो डिस्टेंस है, ठीक है, समझ में आ रहा है, यानी कि इसकी जो स्टार्टिंग वेलोसिटी वेक्टर कहेंगे हम, द इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर एंड द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस, द डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर एंड द central nucleus is known as the impact parameter. Write it by D or B, and it is written in the B according to the NCERT. What is the impact parameter? The perpendicular distance between the central line of nucleus and the velocity vector of the particle. Is it clear? Impact parameter, what is impact parameter? It is the perpendicular distance between initial velocity vector and central line of the nucleus and central line of the nucleus. Is it clear? ये हमारा इम्पैक्ट पैरामीटर हो गया। अगर हम यहां पर देखते कि ये जो आ रहा है और यहां पर कि मैक्सिमम ये यहां तक ही आ सकता है, और फिर क्या हो गया, इसका इफेक्ट होने से अगर ये डेविएट हो जाए तो हम कई बार कह सकते हैं ये डिस्टेंस, लेकिन ये डिस्टेंस क्या है, उसका इफेक्ट होने से पहले डेविएट
होने से पहले, यानी कि यहाँ तक उसकी काइनेटिक एनर्जी सारी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो चुकी थी। तो पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो चुकी थी, ये चीज क्लियर है। तो यहाँ पर क्या होगा, न्यूक्लियस अपना इफेक्ट दिखाएगा और उसको डेविएट कर देगा। तो ये वाला जो डिस्टेंस है ये तो हमारा क्लोजेस्ट अप्रोच हुआ था। लेकिन अगर वेलोसिटी वेक्टर का इनिशियल और सेंट्रल लाइन ऑफ द न्यूक्लियस का डिस्टेंस लेंगे हम, वो होगा हमारा इम्पैक्ट पैरामीटर। इज इट क्लियर? दिस इज द इम्पैक्ट पैरामीटर, डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर एंड सेंट्रल न्यूक्लियस लाइन, एंड दिस इज द इम्पैक्ट पैरामीटर। यानी कि कितने डिस्टेंस तक आ सकता है, कह सकते हैं हम। यहाँ से तो भाई वो डेविएट होना शुरू होगा ना, यही तो कहा था हमने। मान लीजिए अगर इधर आ रहा था तो यहाँ से हो गया, तो वही तो मिनिमम डिस्टेंस है ये, जहाँ तक वो बगैर डिफ्लेक्ट हुए आ सकता है। जहाँ तक बगैर डिफ्लेक्ट हुए आ सकता है तो वो होता है उसका क्लोजेस्ट पाथ ऑफ अप्रोच। और वेलोसिटी वेक्टर और जो हमारा न्यूक्लियस की सेंट्रल लाइन है उनके बीच का जो डिस्टेंस होता है वो होता है इम्पैक्ट पैरामीटर। इम्पैक्ट पैरामीटर के लिए हमारा फॉर्मूला भी, इम्पैक्ट पैरामीटर को बी से डिनोट करते हैं हम। इसके लिए हमारा जो फॉर्मूला है वो है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड ई स्क्वायर कोट थीटा बाई 2। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड ई स्क्वायर कोट थीटा बाई 2 एंड बाई काइनेटिक एनर्जी। ये हमारा इज इट क्लियर? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड स्क्वायर कोट थीटा बाई 2 बाई काइनेटिक एनर्जी। दिस फॉर्मूला इज फॉर इम्पैक्ट पैरामीटर, नॉट इन syllabus but for convenience we have to learn it. Impact parameter, distance between the central line and initial velocity vector, बस। फिर और भी देख सकते हैं हम, अगर ये हमारा b की वैल्यू बहुत कम हो जाए, अगर इम्पैक्ट पैरामीटर बहुत कम हो जाए, 0 हो जाए कह दो, ये लाइन यहां हो, अगर b हमारा 0 हो जाए तो क्या होगा, b 0 आ जाएगा तो बिल्कुल न्यूक्लियस के सामने जाएगा, और न्यूक्लियस के सामने जाएगा, न्यूक्लियस उसको रिट्रेस कर देगा। इज इट क्लियर? तो हमारे यानी कि जो थीटा है, कह सकते हैं हम, अगर b 0 हो जाए तो थीटा कितना हो जाएगा, बिल्कुल उसी लाइन में चला जाएगा, थीटा कह सकते हो आप पाई। इज इट क्लियर? लेकिन अगर b हमारा बहुत बड़ा हो जाए, b अगर हमारा बहुत बड़ा हो जाए, b इज वेरी वेरी ग्रेटर देन दिस, यानी कि अप्रोच से दूर चला जाए, न्यूक्लियस का इफेक्ट ना हो, तो b बहुत बड़ा हो जाए जब इससे, तो थीटा हमारा क्या हो जाए, 0 डिग्री। इज इट क्लियर? ये क्लियर है हमारा? अरे यही तो देखा हमने भाई, अगर इसके साथ